Good morning, students. Today we are going to learn 10th standard English poem that is the 2.1. You start dying slowly. This syllabus is concerned with the Marathi medium and semi-medium students of 10th standard. Okay. So in this poem, the poet Pablo Picasso Neruda is going to express some things are there very compulsory in our life, but if we stop that one, we are start dying slowly. Here the dying slowly means what? We are losing hope of happy future. So every person has the future, every person has the dream. For the sake of that, every person has to take the effort to do that, to complete that dream or future. So in this poem, the writer is going to express how these things are very necessary in our life and what happens if we stop that one. Let me go through the poem. See page number 42, your English textbook 2.1. You start dying slowly. First stanza is there. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. In first stanza is writer going to express if you do not travel means traveling is must part of to getting knowledge. Traveling is very important to know the knowledge. So if you want to know the world, you should have to travel the world. If you want to India, if you have, then you should have to travel India. So all the people, those who are known people in our country and around the world have traveled throughout the world and got the different culture, different knowledge, different languages, and they become very powerful for that one. So first thing is that if you want to know the country, if you want to know your geography, you should travel at all. If you do not travel, and then if you do not travel and if you do not read, rather you have to go tour as well as you should have to read about the country, about the history, about the geography. If you do not that one, and if you do not listen to the sounds of life, so when you travel throughout the world, you will meet the different people and you will get to listen the sounds of life. If you do not appreciate yourself, and first thing is that we all are born unique. God has given such an individual personality, every person. That's why we don't have to consider anybody. We should have to appreciate ourselves. If you do not appreciate yourself, if you do not travel, and if you do not read, and if you do not listen the sounds of life, then you are going to start dying slowly. Means you are losing the hope of happy. Now see the second stanza. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Self-esteem means what? We have to keep ourselves always be happy. Self-esteem means we have to keep such a character. This is our own character. That ability God has that is the inbuilt abilities of ourselves, as well as these are the self-respect. We should have to keep ourselves. In first stanza, that is saying, the writer saying that if you do not appreciate yourself, yes, we have to appreciate ourselves. What you are today, what you have today, that is most important part of your life. So that's why if you kill your self-esteem, then and if you do not let others help you, उसके साथ ही क्या कर सकते हैं कि आप किसी को हेल्प भी नहीं करते हैं या किसी को हेल्प करने नहीं देते हैं, और हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आप अगर समझो किल करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आप गोइंग टू बी डाइंग स्लोली, यानी आपका फ्यूचर जो है वो क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा. इसलिए हमें और आप सब लोगों को क्या करना है, ये जो राइटर हमें जो कहता है, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में कंसिस्टेंटली करना है. थर्ड stanza is there. If you become a slave of your habits, walking everybody on the same path. कैसा है कि आप अगर समझे आपके हैबिट्स के अगर स्लेव बने, गुलाम बने, और आप हैबिट चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, आपका बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली कैसा रहेगा, डार्क रहेगा. जैसे कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, अब्दुल कलाम, जो कहते हैं कि वी कांट चेंज आवर फ्यूचर बट वी कैन चेंज आवर हैबिट
एंड आई एश्योर यू योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। यानी हम हमारा भविष्य बदल नहीं सकते, हमारे आदतें हम बदल सकते हैं। और APJ अब्दुल कलाम एक वर्ल्ड के सक्सेसफुल पर्सन है, वो कहते हैं कि अगर हमारे हैबिट चेंज होंगे तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी चेंज होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो स्लेवरी करते हैं हैबिट्स की, जो हम आदतों के गुलाम है, वो हमें बंद करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, हमारा जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है, 10 बजे उठने का, 12 बजे सोने का, मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज़ करने का, ये जो चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, हम अगर समझो लाइफ में डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करेंगे, डिफरेंट कलर हम हमारे लाइफ में नहीं लेंगे, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और जो न्यू लोग हैं आपके जीवन में आने वाले, उन सभी लोगों के साथ अगर आप बात नहीं करोगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। आपका जीवन जो है क्या हो जाएगा, भविष्य जो है आपका वो अंधकार में हो जाएगा। उसको राइटर ने यहाँ पे क्या कहा है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अभी जो है 4th स्टैंडर्ड जो है, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस। कैसे कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पैशन मतलब क्या है, पैशन कैसे खोजना है, पैशन कैसे खोजना है कि अगर समझो ऐसी चीज़ है आपके जीवन में जिसके आप पैसे भी नहीं मिलते हैं आपको, तो भी आपको चीज़ करने में मज़ा आता है। ऐसा है कि वो आप कितने भी दिन करते हो, कितना घंटे करते हो, लेकिन आप उससे थकते नहीं और आपको उसमें आनंद ही आ जाता है और वो चीज़ में आप एंजॉय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पैशन है। तो आपको क्या करना है कि आपको पैशन को क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है, उसको क्या करना है, फील करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, आपके जो इमोशंस है उनको अनस्टेडी रखना है, वो जिंदा रखना है। दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन, जो इमोशंस है, जो आपका पैशन है, वो आपके आइज को क्या करेगा, स्पार्क करेगा। एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर वो नहीं करोगे और आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा और उसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, फिर स्टार्ट डाइंग स्लोली। यहाँ पे डाइंग स्लोली यानी हम लोग मरेंगे नहीं, हमारा फ्यूचर क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, जो भी आपको अब तक जो मिल रहा है, अब तक आप जो कर रहे हैं, आपको अगर कुछ अलग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। यानी इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर लाइफ, दैट इज़ योर ऑप्शन, दैट इज़ योर चॉइस। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, आप कोई समझो काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको उसमें क्या समाधान अगर नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिल रहा है, तो जॉब को क्या करो, आप छोड़ दो, क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। और विथ योर लव, और जो भी आपका प्यार है उसको अगर आपको समझो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करो, यू शुड, इट इज़ बेटर टू लीव दैट वन। यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर अनसर्टेन। अभी कैसा है कि जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है कि रिस्क के सिवा लाइफ नहीं है। कैसा शिप जो है, जहाज़ जो है, किनारे पे क्या है, सुरक्षित है। जो भी शिप्स रहते हैं, वो जहाज़ जो रहते हैं किनारे पे क्या है, सुरक्षित है, लेकिन किनारे पे रहना उनका धर्म नहीं है। उन्हें क्या करना है, समुद्र के अंदर जाना है, लहरों में जाना ही है, उनको जो स्टॉर्म है उससे फाइट करना ही है, कि उनका रिलीजन है, उनका धर्म है। वैसा हमारे जीवन में जो है ना, जितना भी आप कंफर्टेबल रहोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, उतना आपका लाइफ अनकंफर्ट होगा, अनसर्टेन होगा। जितना आप रिस्क लोगे उतना आपका लाइफ कंफर्टेबल बनेगा। यानी आपको जीवन में रिस्क लेना है। रिस्क इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड हाउ टू हैंडल इट, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। तो रिस्क क्या है, हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। नेचर का रूल क्या है कि नेचर हमेशा रिस्क लेता है। हम अगर रिस्क नहीं लेंगे तो नेचर ये क्या करेगा, हमारे साथ रिस्क लेगा। यानी टाइम है, समय है तो बदल जाओ। कैसा है, समय है तो बदल जाओ, रिस्क लो। अगर समय ने आपको बदला तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ होगी और समय आपको बदल ही देगा। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, आप ड्रीम की तरफ नहीं जाओगे। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, आपको क्या करना है कि जो भी आपका सपना है, छोटा सपना रहने दो, उसके पीछे आपको जाना ही है और आपको क्या करना है, खुद को अलाउ करना है एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम।
आपको क्या करना है कि रिस्क लेना है। जीवन में एक बार तो भी रिस्क लेना होगा। अगर आप वो रिस्क नहीं लोगे टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, अगर आप समझो उससे भागना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन जो है अंधकारमय हो जाएगा। और यहाँ पे पोएट जो है आपको बार बार यही कहता है कि आपके जीवन में आपको रीड करना है, ट्रैवल करना है, सेल्फ स्टीम को जगाना है, आपको पैशन को जगाना है। आपका जो हैबिट्स है, जो गलत हैबिट्स है उसको बदलना है और अच्छी हैबिट्स को एक्वायर करना है। और आपको डे टू डे आपको क्या करना है, अपडेट करना है, बदलते रहना है। और जितना आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे, एक दिन क्या हो जाएगा, आपका जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो नेचर क्या करेगा, आपका जीवन बदल देगा। ये तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आपको खुद को बदलना है और आपके हिसाब से जीवन को बदलना है, या तो फिर नेचर बदलेगा और उसके हिसाब से फिर आपको जीवन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है। आप लोगों को इसको बार बार रीड करना है और इसका मीनिंग बार बार याद करना है। दिन में एक बार तो भी इस पोएम को देखते जाओ, या 2-3 दिन में एक बार तो भी पोएम को रीड करते जाओ। आपके जीवन में जो भी कुछ दुख होगा वो अपने आप हट जाएगा और आप जीवन में सक्सेसफुल बन पाओगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।